Bonjour. Can you hear me, Ravinder? Bonjour, Bonjour. Comment ça va? ça va bien? Oh, très bien. You already started speaking French, huh? Très bien. I know these little phrases. No, That's what we all know. absolutely. That's how you start, and that gives you confidence that yes, I can at least strike a conversation with someone. So that's good. We'll start now. We're waiting for others to join in. So today was a different time, so maybe that's why people are taking some time to join in. I'll quickly drop a message to everyone to join in, and then we'll get going. Okay, très bien. Là. All right. So what we'll do is that meanwhile, we can quickly move ahead. I'll try to help you with the things that we have done, and it'll be easier for you to move ahead. Okay. So what you rightly say is bonjour and comment ça va. So bonjour and comment ça va are the important terms that we have to understand. So bonjour is hello, and comment ça va is how is it going. So could you just repeat again and say Ravindra, bonjour. Bonjour. Très bien. And the question, yeah, and the question to ask how is it going, you ask comment ça va? Comment ça va? Très bien, comment ça va? And what answer can we expect from this is you can say ça va. Ça va? You could also say ça va bien, Ça va bien? which means it is going good. You can also say Ravindra ça va très bien. Could you repeat that? Ça va très bien. Oh, this is first time. Ça va très bien. Very good. Ça va très bien. Ça va très bien. Or you could in the end say if you are at the top of your well-being, you would say super. 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 Très bien. Perfect. You know, that's how you would say. And if something is not going good, you can always say ça ne va pas. Repeat and say ça ne va pas. Not good. Yeah. So how do you say that? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Perfect. Ça ne va pas is what you would say when things are not going fine. Or you could even simply say ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Repeat and say ça va mal. Ça va mal. Yeah, so it's going bad. Ça va mal. And things are not going fine. You would say ça ne va pas. So I think we have joined by Vaibhav. Bonjour Vaibhav, comment ça va? Bonjour, ça va? Et vous? Ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va très bien? Super. Comment? Am I audible? Yeah, you're audible. Ah, okay. So, Ça va bien, merci. ça va bien, merci. And you can always ask the other person in an informal way, you can ask et toi, and in a formal way, you can ask et vous. So, और तुम कैसे हो is et toi, and आप कैसे हैं et vous, right? That you could ask. Sir, I wanted to check one thing. Yeah. Should we write this or you'll be No, I'll be sending you this document, so don't worry about it. But on and off you can write if you wish to, because the more you write, you catch hold of the spellings as well. But don't worry much about it. I will be sending the whole document as a PDF to you after the class. All Right? Okay. That's Susi. So we are joined by Ravinder today. So what we'll do, Ravinder, we'll just run through quickly because Vaibhav and other people, they have known these things. So I'll be quick with that, but in a way that you understand certain things. So it will be a quick revision for others as well. So in French, we have got some people as in I, you, he, she, they, everyone. So you just try to understand. Je, what does je stand for, Vaibhav? Je means? I. So if you're going to talk about yourself, you'll always use je. Could you repeat that once for me, Ravindra? Je. Je. Très bien. Je. What about next one, Vaibhav? How do you pronounce this one? You. Tu. And what does that stand for, Vaibhav? Tu means? You. You. Exactly. You in the informal way. You in the informal way. अगर आप हिंदी जानते हैं तो तू और तुम, जो हम हिंदी में तू और तुम बोलते हैं, वो होता है हमारा tu. तू और तुम, right? Similarly, the way we have in Hindi, you're comfortable with Hindi? You understand Hindi, Ravindra? Yes, Right? yes. Perfect. बहुत अच्छे से आती है हिंदी। I have to check it. I have to check with everyone if they are okay or not. So that's true. If you know it well, तो बहुत आसान है आपको समझना कि फ्रेंच में tu हमारा तू और तुम होता है और फ्रेंच का वो हमारा आप होता है, right? That's how we'll be easily moving it. Il, elle, on. Repeat that for me, Weber once. Il, elle, on.
Il, L, O. Oh, perfect. And what does that stand for, Vaibhav? Il means? It is the they in for the No, no. masculine. Il means he. Sorry, he. Sorry, He. he. And il He, means? she. Yeah. So il मतलब he, l मतलब she और o के दो मतलब होते हैं वैभव and Ravindra. It means one, as in one should get up early in the morning, one should not tell lies, one should be on time. And o का एक और मीनिंग होता है we, हम, right? So ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और जो फॉर्मल तरीका होता है we बोलने का, हम बोलने का फ्रेंच में होता है. How do you pronounce that, वैभव? Nu. Nu. N-O-U-S की ध्वनि है nu, which means we. Right? If N-O-U-S is nu, Ravindra, if N-O-U-S is nu, what do you pronounce V-O-U-S? Boo. Absolutely. And what does woo stand for? You, which is आप in Hindi, या आप सभी. आप सब. Right? Okay. Oh, so, two, that's how we pronounce it. We pronounce it tu. आधा त यू उ की मात्रा tu. 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 You and boo are same. Same you in English. In English दोनों same है you. Okay. But French में मतलब है, yeah, tell me. मैं भी वही clarify कर रही हूँ. फ्रेंच में का अलग होगा. हाँ, फ्रेंच में अलग होगा. आपका किसी के साथ अगर इनफॉर्मल कनेक्ट है तो आप क्यू करके बात करेंगे, तू या तुम. और अगर आप करके बात करेंगे रविंद्र, तो आप बोलेंगे वू. या तो ये आपको ध्यान रखना है. यू हैव टू गो बैक टू हिंदी सो एज टू हैव मोर ऑफ क्लैरिटी. और अंत में अगर हम देखेंगे दे की बात करें तो मैस्कुलिन प्लूरल पीपल के लिए और फेमिनिन प्लूरल पीपल के लिए हम देखते हैं. हाउ डू प्रोनाउंस दिस वन, वैभव? ILS? Ill. So you see, Ravindra, that S is not going to be pronounced. So it is going to be ill, which means velog, they, They. And this is L, which is velog, they, but feminine people. ये सारे masculine लोग हैं और ये सारे feminine लोग हैं, यानी सब महिलाएं हैं और यहाँ पे सभी पुरुष हैं. बट अगर ऐसा ग्रुप है इसमें बॉयज और गर्ल्स शामिल हैं और उस ग्रुप को आप अगर इंडिकेट करें तो आप फिर से इल में चले जाएंगे. सो इल इज गोइंग टू डेजिग्नेट male people and male and female both, and purely female will be L. Alright? हाँ, डोंट वरी, थोड़ा सा स्पीड में लगेगा. आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा वीडियो का. टेक योर टाइम, वॉच इट अगेन एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी थिंग्स, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं. हम जब इन लोगों को जान लेते हैं, I, you, he, she, we, they and everyone, which in French is je, tu, il, elle, on, nous, vous, il and elle, then we start making basic sentences with the help of verbs. दो important verbs हमने देखे थे, अगर आपको याद है वैभव. पहला था être, which means to be, होना. और एक हमने सीखा था avoir, which means के पास होना. तो मैं क्या हूं? I am a student. मैं क्या हूं? I am intelligent. और मेरे पास क्या है? I have a pen. मेरे पास क्या है? I have a house. तो मैं क्या हूं is going to be our initial understanding with the verb to be, which in French is être. And उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा possession बताते हैं, which is with the verb avoir, which shows what do you possess. तो इसमें हम हमारी विशेषताएं देखते हैं. मैं इंडियन हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ. और इस वाले वर्ब में हम हमारा possession देखते हैं. I have a car, I have a house, I have a dog, I have a pen. राइट? तो हम इन दोनों वर्ब्स को हम काम में लेते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते समय. तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं. अगर आप ध्यान देंगे रविंद्र, तो आप ऑलरेडी इन लोगों को जानते हैं. ज को, त्यू को, इल, एल, ओ, नु, वू, इल, एल को अब आप जानने लगे हैं. हम एत्र वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से. सो विल रिक्वेस्ट वैभव टू हेल्प अस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस होल थिंग. वैभव? Je suis. voilà, je suis. Tu es. je suis, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखता हूँ. je suis. हाँ, आगे tu es, वेरी गुड. tu es. tu es, आगे. Il est. तो एक साथ बोल दीजिएगा इले. इले, ये इले की ध्वनि देगा पॉजिटिव में. इले. Elle est. एले, वेरी गुड. लॉस एंजलिस होता है ना, एले. 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 O est. इसको भी आप जोड़ के बोलिए वैभव. ओने. ओने, जुड़ के बोलेंगे ओने, राइट? आगे. हाँ. Nous sommes. नु सोम, वेरी गुड. नु और सोम, नु और स ओ की मात्रा और म, नु सोम. आगे.
Vous वेरी गुड, यहाँ पे जुड़ जाएगा रविंद्र, वू जेद बन जाएगा, व उ की मात्रा, ज नीचे बिंदी, दो ए की मात्रा और तो वू जेद। आगे ils sont, या इल सो की ध्वनि आएगी, इल सो बिंदी के साथ और एल सो, राइट, परफेक्ट। So I'll read the whole pronunciation for you both. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. That's how it's going to be, which in English translates as what I've written for you in English as well. I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are, and they are. Sava, Ravindra? Sava? Sir, I have one question. Yeah. So ये जो आपने ऊपर लिखा है एथरे इज इक्वल टू 2b, so एथरे क्या है यहाँ पे? I was thinking कि एथरे शायद आएगा। हाँ, तो इसीलिए एत्र जो क्रिया है हमारी, इसका पूरा रूप बदल जाता है, डजंट से एत्र एनीमोर, इट बिकम्स स्वी ए सोम एट सोम, ये बन जाता है इस वजह से, राइट। एथरे मतलब यहाँ पे वर्ब है ये वर्ब है, ये एग्जैक्टली ये जो वर्ब है इसका फॉर्म पूरा बदल गया, इसलिए आपको एत्र कहीं नहीं दिखा, इसलिए बड़ा ट्रिकी वर्ब है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इजी हो जाता है समय के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहली क्लास में हम इसको सीखते हैं सबसे पहले टू बी, क्योंकि आप अपनी विशेषताएं बताएंगे, मैं इंडियन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं तब बता पाऊंगा जब मुझे जस्वी आता होगा, और वो कहाँ से आएगा, एत्र से सीखने पे आएगा मुझे, राइट, जस्वी। ओके, बट लाइफ इज नॉट सो टफ, बिकॉज आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे कि वर्ब्स बहुत सिंपली आप कॉन्जुगेट करते हैं और उसका रूप वही रहता है जो मेन वर्ब का होता है। यहाँ पे एथ और अवर दो ऐसे ट्रिकी वर्ब्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट दे चेंज द कंप्लीट फॉर्मेशन। Alright, so this goes this way. I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are, and they are. Voila. We'll go ahead now with the verb avoir, which means to have. So over to you, Vaibhav. How do you do the pronunciation of I have, you have, he has? इसको बोल के बताइए फ्रेंच में आप। j'ai, Yeah, tu as, very good. il a, Hmm. elle a, Right. on a, On a, very good. nous avons, Nous avons, very good. ils sont, elles sont. अंत में ils sont की जगह आपको बोलना है वैभव, ils ont, elles ont, z की ध्वनि आएगी, right? Because if you say ils sont, तो आप वापस इसमें चले जाएंगे वैभव, they are and they are, but you have to say they have, right? मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ हिंदी में, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, और अंत में हो जाता है ils ont और elles ont। हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ पहले, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont। राइट, यहाँ तक क्लियर है आपको? Which means in English as I have, you have, he has, she has, we have, you have, they have, and they have. What do they have? We'll see it later on, but this is how we would do. Ça va, Vaibhav, Ravindra, c'est bon? Ça va? So yeah, it might be a little speedy for you, Ravindra, but then since we have done it, so we could do it in a quick way. But if at all you have any issues, you can ask me. I'll ask you to quickly help us read the whole thing, Ravindra. Être wala verb in positive way and avoir wala verb in positive way. बोल के बताइए एक बार आप. I'll try. Yeah. J'ai, je va, Je suis. je suis. Okay. Ah. Okay. Je suis. Tu es. Tu es. Elle est. Il est. पहले il est आएगा, हाँ. Elle est. Elle est. On est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. हाँ, तो तक जाना, vous êtes. Vous êtes. हाँ. elles ont. पहले ils sont. पहले ils sont. Ils sont. Elles sont. Perfect. ils sont, elles sont. Great. And the next one is going to be the verb avoir, which means to have. इसका बोल के बता दीजिए आप. J'ai. J'ai.
बहुत क्लीन आना चाहिए, जे जे। Is it J or Z, right? इट इज ज, बोलिए ज, Je, और इसमें एक ही ध्वनि डालिए, जे। J, परफेक्ट, एग्जैक्टली, जे, वेरी गुड। J, tu a, अच्छा, इसको तू आ नहीं बोलना रविंद्र, तू आ, tu a, वेरी गुड, तू आ। uh, il a, इला, एक साथ बोलते el, रहिए, जोड़ जोड़ के, इला, एला, ela, ela, ona, हम्म, nous nous avons, vous, vous avez, वेरी गुड। sorry, B वाला भी पढ़ लिया। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Vous avez, ils ont, elles ont. Perfect, très bien. Okay, great. I'll just quickly read it once for you. So it goes like this. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, for être. And for our it goes j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Right? अभी समझ में आ गया? That's more important. प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा ये, बहुत इजीली आप बोल पाएंगे आप क्या हैं और क्या आपके पास है. That's how you start. Ça va? Vaibhav, Ravindra, c'est bon? D'accord. Okay, we'll move ahead. Now, this we just saw with Ravindra. We'll move ahead. I was telling the other day to our group that there are three kinds of verbs, Ravindra, in French. ER ending होते हैं, IR ending होते हैं और RE ending होते हैं. अभी आपने दो मुख्य वर्ब देख लिए थे, être and avoir, जिन्होंने आपको टेंशन में ला दिया कि भाई ये ऐसे अगर इतने बदलेंगे अपने रूप तो हम कैसे याद करेंगे. सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो ही वर्ब्स है जो अपना पूरा रूप बदल लेते हैं. अब हमारे जो वर्ब्स हैं वो एक पैटर्न फॉलो करेंगे. तो मैं आपको एक एक वर्ब तीनों में दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए. तो एक वर्ब हम लेते हैं शांते. शांते, शांते, शांते. व्हाट डज दैट मीन वैभव? शांते मींस टू to sing. चलिए एक बार देखते हैं how do we do. Could you help us, Vaibhav? How do you do the present tense conjugation for the verb chante? I sing, you sing, he sings, she sings. ये कैसे बोलेंगे आप फ्रेंच में? Je chante. Very good. Tu chantes. Perfect. Perfect. Il et l'on chante. Nous chantons, vous me chantez, और अंत में il elle. वेरी गुड, एग्जैक्टली. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रविंद्र की आपको शांते मुख्य क्रिया कहीं ना कहीं वैसी शक्ल का दिखा है, शांत शांत शांतों शांते शांत. दैट्स हाउ इट इज. सो अभी इट्स गोइंग टू बी इजी. जो मेन वर्ब है वो पाया जाएगा, बड़ा एक्सप्लिसिटली दिखता हुआ आपको दिखेगा. करना क्या रहेगा आपको? बहुत सिंपल सा काम करना है आपको. आपको मुख्य क्रिया में से ER हटाना होगा. जो ER एंडिंग वर्ब्स है उसका ER ड्रॉप कर दीजिए. व्हाट यू आर लेफ्ट विद CHANT, उसके अंदर आपको एंडिंग्स लगानी है E, ES, E, ONS, EZ और अंत में ENT. ये आपको एंडिंग्स लगानी होती है ER एंडिंग वाली क्रियाओं में, हर क्रिया के अंदर, और आपको कॉन्जुगेशन हो जाएगा. तो je chante का मतलब होता है I sing, I sing, या फिर I am singing, मैं गाता हूं, मैं गा रहा हूं, मैं गा रही हूं, मैं गाती हूं. I am singing बोलिए या I sing बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है फ्रेंच के अंदर, je chante. ठीक है, je chante. और अच्छी बात यह है कि शुरुआत के तीनों की ध्वनि होती है शांत, शांत, या और अंत वाले की भी वही ध्वनि होती है शांत. और यहाँ पे ओ की ध्वनि है तो शान, शांतों, और ये हो जाएगा एक ही ध्वनि तो शांते. ये आपको ध्यान रखना है, राइट. और शांते का मतलब होता है टू सिंग. ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर आप एक बार पढ़िएगा रविंद्र. फिर हम वैभव आपसे पूछेंगे दो तीन वर्ब्स, देखते हैं फटाफट से आपके दिमाग में इजीली प्रोसेस हो रहे हैं नहीं हो रहे ER एंडिंग वर्ब्स. तो इसका प्रोनाउंसिएशन इट गोस लाइक दिस. रविंद्र, je chante, tu chantes. ये मैं इतना बोल के सुना रहा हूँ ताकि आपके कान में सुनाई दे, और आप भी इसको ऐसे ही बोलें, लेकिन धीरे धीरे इसको सॉफ्ट कर दीजिएगा. यानी je chante, tu chantes, तो हैज टू बी हर्ड, राइट. je chante, यहाँ पे ये ई को पढ़ना नहीं होता तो पे रुकना है हमारे, राइट. je chante, tu chantes, इसमें भी ES में ही पढ़ेंगे. tu chantes, il chante, elle chante, on chante, nous chantons, ton,
vous chantez, ते, il chante, elle chante. चलिए पढ़िए रविंद्र. Je chante, हम्म tu chantes, हम्म il chante, हम्म elle chante, on chante, हम्म. nous chante, chante, sorry. हाँ, nous chantons. हम्म Vous chante, हम्म. elle chante, il chante. हाँ ठीक है, पहले il chante फिर elle chante. परफेक्ट. चलिए इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं. एक बार आप ट्राई कीजिए. वैभव, हमें एक वर्ब हम आपको देते हैं. वर्ब इज regarder. regarder होता है टू वॉच, देखना. कोई आपसे पूछेगा टीवी देखते हो क्या, या मैं टीवी देखता हूँ, तो आप बताइए एक बार वैभव regarder वर्ब का. Je regarde, je regarde, R-E-G-A-R-D-E. tu tu regardes, tu regardes, ठीक है. elle, on regarde, परफेक्ट. नु के साथ बताइए. nous regardons, परफेक्ट. nous regardons. दो की ध्वनि आप सुनिएगा रविंद्र, हमने दो की ध्वनि मेंटेन करी है. ओके, आगे बताइए. vous regardez, परफेक्ट. हमने regarder में एक ही ध्वनि मेंटेन की है, और अंत में elle, परफेक्ट. सो देखा आपने, हमने वही काम किया. हमने er एंडिंग के अंदर से er को हटाया, और हमने फिर e, es, e, ons, e0, ent लगाया, और हमने इन तीनों की ध्वनि रखी regarde, और अंत वाले को भी लिखा regarde, लेकिन यहाँ वाले को हमने बोला regardons, और यहाँ वाले को बोला हमने regarder. राइट, regarder. voilà. So je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde, on regarde, nous regardons, vous regardez, और अंत में il regarde, elle regarde. या बताइए रविंद्र. शायद मैंने मिस आउट किया होगा. ये जो ऊपर अभी ई एस डी ई ओ एन एस, ये किस बेसिस पे हम यहाँ पे लगाते हैं, इनको चेंज कर रहे हैं? ये जो आप कह रहे हैं एंडिंग्स, हाँ जी, हाँ जी. ये एंडिंग्स हमें इसके कॉन्जुगेशन के लिए, ताकि उसका उस व्यक्ति के अनुसार सही कॉन्जुगेशन जाए. तो मुख्य क्रिया है regarder, लेकिन जो में regarde बन जाता है ई के साथ, ट्यू में es लगता है. आपका प्रश्न ऐसा क्यों करते हैं? इज इट द क्वेश्चन? हाँ जी, मतलब ये क्यों हम किस बेसिस पे चेंज हाँ, कर रहे हैं? बे- शायद हाँ, नहीं मैं नहीं, बेसिस है ही नहीं कोई. देयर इज नो बेसिस. इट इज आर्बिट्री. जैसे हिंदी में होता है, मैं खाता हूं लेकिन तुम खाते हो, वह खाता है, हम खाते हैं, आप खाते हैं, वे खाते हैं, और वे खाती हैं. तो बस यही है कि हिंदी में कहीं ना कहीं कोई, या सिमिलरली. तो जो भी ये नु वो होंगे उसके साथ, मतलब ये लास्ट में जो वर्ब की ये चेंज हो जाएंगे. हाँ. ये लगेंगे. लगेंगे लगेंगे. यदि मुख्य क्रिया er एंडिंग है रविंद्र, तो er एंडिंग होनी चाहिए, तब ये वाली एंडिंग्स लगती हैं. राइट, बिकॉज हमने अभी अभी देखा है कि हमारे पास 3 प्रकार की एंडिंग्स मिलेंगी इस पूरी फ्रेंच लाइफ में, er, ir, re. इस पर और चर्चा करेंगे हम, चिंता मत कीजिए. या वैभव. sir, suppose I am watching TV, I watch TV or I am watching TV, दोनों में सेम है. je regarde, हाँ, तो अगर आपको बोला है मैं टीवी देख रहा हूं या मैं टीवी देखता हूं, तो दोनों के लिए आपके पास एक ही वाक्य है फ्रेंच के अंदर. je regarde la télé. télé, je regarde la télé, which means I watch television and I am watching television. Both are the same in French, right? so just we regarde la TV नहीं है. हाँ, वो गड़बड़ फ्रेंच है, वो गलत फ्रेंच है. अगर आपकी इच्छा हुई मन में कि हाँ मैंने सीखा है कि I am तो फ्रेंच में je suis बोलते हैं, तो क्यों ना मैं I am watching TV को और I watch TV दोनों यही होंगे. तो क्यों ना मैं I am watching को मैं यहाँ से कुछ ऐसा उठा लूँ कि मैं I am watching TV को मैं यहाँ से je suis कह दूँ, क्योंकि हमने सीखा है I am तो je suis होता है. लेकिन क्रिया के साथ always with the verb, please ensure that you don't use je suis. I am watching में मुख्य क्रिया है watching, तो हमें watching की verb होती है to watch, which is regarder. तो je के साथ regarde जाएगा, ना कि je suis. je suis किस स्थिति में जाता है वैभव? जब आप अपनी कोई विशेषता बता दें. je suis indien, मैं भारतीय हूँ. je suis intelligent, मैं होशियार हूँ. je suis beau, मैं handsome हूँ. je suis belle, I am beautiful, someone wants to say. तो अपनी विशेषता बताने के लिए quality, not a verb, क्रिया बताने के लिए नहीं कि I am dancing, नहीं. I am eating, नहीं. तो उसमें सीधे मुख्य क्रिया यानी टू डांस और टू सिंग और टू ईट पे जाएंगे, ना कि je suis पे जाएंगे. राइट?
ओके पत्सुसी, बिकॉज दैट इज हाउ वी ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का। ओके सवा, रविंद्र सवा। हाँ जी, yes, Oui. so Très bien. Okay, so we just quickly yesterday we saw this thing. So मैं एक बार फिनीर का बताता हूँ आपको एंडिंग, और वॉन की बताता हूँ। अभी ज्यादा मत परेशान होइएगा, बिकॉज बाकी लोगों के साथ भी आईआर और आरई हमने सिर्फ टच किया है, ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। तो सिर्फ मैं टच करके आगे बढ़ जाऊंगा, और फिर हम डिटेल में जब भी देखेंगे साथ में तब देख लेंगे। तो फिनीर होता है टू फिनिश, समाप्त करना, टू फिनिश। ये आईआर एंडिंग है। इसका भी एक रूल होता है, एक पैटर्न होता है, बड़ा आसान सा रूल। आपको याद है वैभव कैसे होता था? इफ यू रिमेंबर वी डिड दिस। हाँ बताइए। सो और नु, FINISSONS, या तो इसमें क्या रूल चलता है हमारे पास रविंद्र? हमें क्या करना है, हमारे को बहुत सिंपली हमारा जो वर्ब है उसका आर हटाना है। इस स्थिति में यू जस्ट रिमूव आर, सिर्फ आर, रिमूव आर हटा दीजिए, तो आपके पास फिनी फिनी बच गया, FINI बच गया हर जगह। ठीक है, फिनी फिनी बच गया, आर छोड़ा तो FINI बचा। तो एंडिंग लगाई आपने SSTSSONSSSEZ और SSENT। राइट, ये ध्यान रखना है आपको। राइट, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल रहेगा, शुरुआत में याद करना है, रटना है, फिर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, और इसका उच्चारण हो जाएगा फीनी 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 फीनी। कोई मिठाई याद आ गई आपको वैभव? फीनी? नो, एक फीनी मिठाई होती है, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट, यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फीनी, सो दैट्स नो, बट दैट इज नॉट द नो, सो दैट इज फीनी। आई का ध्यान रखिएगा, हमेशा खींच के बोलना है, फीनी, राइट? मतलब छोटी की मात्रा नहीं होगी, फिनी नहीं होगा, फीनी, राइट? फीनी, यू हैव टू ड्रैग इट, फीनी। सो je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit। इसका बताइए वैभव, नु फिनी, You finish off. और अच्छे से नु फिनी। You finish off. अच्छा, आप जो की ध्वनि दे रहे हैं, जबकि दो एस आने पे स की ध्वनि आनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम? नु फिनी So. सो। वेरी गुड। ये देखिए, जो और स में आपको लगेगा इतना क्या फर्क पड़ता है, बट सिंस यू आर इनटू दैट एनवायरनमेंट यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद सो एंड जो। सो स जो में बिल्कुल भेदभाव हमें करना है, बिकॉज हमारा सही उच्चारण तभी होगा। सो फी नी और सो, फिनिसो, और इसका क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले का? फिनी से, फिनिश से, और अंत में फिनिस, फिनिस। इस वाले में एक चीज ध्यान रखिएगा रविंद्र की, शुरुआत के तीन और आखिरी वाला इसमें सेम जैसा नहीं रहता, बिकॉज आईआर के अंदर हम डबल SENT के कारण फिनिस तक जाएंगे, तो फिनिस पे जाएंगे, जबकि शुरुआत के तीनों फिनी 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 थे। राइट सवा? très bien। सो भविष्य में मैं आपको कभी आईआर एंडिंग दूंगा तो आप आर ड्रॉप करिएगा, जो बच जाएगा उसमें SST, सोशल स्टडीज, SST लगाइए, SSONS, SSEZ और SSENT लगाइए, आपका काम हो जाएगा। और ध्वनि की जहां तक बात है वो हो जाएगी, you'll have to use फिनी फिनी फिनी, फिनिसो, फिनिसे एंड फिनिस। राइट, ओके। एक और हम वर्ब करते हैं आखिरी, उसके बाद आज हम एक टेक्स्ट पे चलेंगे। आज मैं आपको एक टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, उस टेक्स्ट से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, थोड़ा एक आपका इंटरव्यू लेता हूँ, कुछ सवाल जवाब पूछते हैं वैभव से। एंड आई सी तरुण। बोंजूर तरुण, comment ça va? Ça va? Can you hear me Tarun? Ça va? Okay, anyway, let's give him a minute to settle. So अगला वर्ब है हमारा vendre। Vendre means, yeah, I think he's there. Bonjour Tarun, ça va? I'll have to fix his, I think, device once. So vendre means to sell. Do you remember this one? Vaibhav, vendre means to sell, बेचना, right? Okay, Yes. to sell. SE, I'll just redo it. To sell. Voila, to sell. I don't know, yeah, I think he's fixing up. So इसमें क्या होगा? इसमें RE को हटाना है आपको रविंद्र, और आपको VENDS, QVENDS, IL O के अंदर से VEND तक जाना है, और वो में क्या जाना है आपको? VEN
DONS, वू में आई एम सॉरी नू में नू, और वू में जाना है VENDEZ, और अंत में एल के साथ आपको जाना है VENDENT में। तो इस तरीके की इसकी एंडिंग होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो DRE एंडिंग होते हैं या RE एंडिंग होते हैं, हाउ डू यू हैव टू गो फॉर देम। आपको RE हटा के S नथिंग, ONS EZ और ENT लगाना है, राइट, दैट्स हाउ यू हैव टू डू। तरुण, कैन यू हियर मी? Yes. Bonjour Tarun, comment ça va? Okay. Super? Très bien. Alors, quelle est ta nationalité, Tarun? Quelle est ta nationalité? Indian. Okay, that was a way out, but how have you to give the whole thing? Vaibhav, quelle est ta nationalité? Je suis Indian. Voila, you'll have to use je suis indien. Say the whole thing, je suis indien, right? Which means I am Indian. So just to help Ravindra understand, what was that? Je suis indien. So you remember this thing, Ravindra, je suis means I am. हमने देखा था शुरू में। और indien एक मेल पर्सन के लिए indien, यहाँ तक रुकेंगे हम INDIEN तक। तो indien पढ़ेंगे कोई भी बॉय या मेल पर्सन के लिए je suis indien, और एक फीमेल पर्सन के लिए हो जाएगा indienne, राइट। सो अगर आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे je suis indienne, perfect, right? Okay, so coming back to this vendre verb, I'll just quickly get you the pronunciation of the same. VENDRE, vendre is to sell. Je vends, vend की ध्वनि देंगे हम इसको, je vends, मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको मिल जाए। vend, je vends, tu vends, il vend, elle vend, on vend, सबकी ध्वनि vend की ध्वनि है। Any guesses for this one? रविंद्र, नू के साथ VENDONS को क्या पढ़ेंगे? Vendons, right? Vendons. Okay, if nu is vendons, Vaibhav, who is what is vous? Vous vendez. Very good. Vous vendez. Perfect. और अंत में क्या हो जाएगा? If you remember, Tarun, what will be the last one? Il. Vend. दो पे रुकना है हमारे को. Vend. Right? Vend. Perfect. All right. So that is how we have to do our conjugation for verbs. अभी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि 3 प्रकार के verbs होते हैं फ्रेंच टोटल लैंग्वेज में. ER ending, I'll repeat, ER ending, IR ending and RE ending. And how do you do the conjugation? Conjugation मतलब je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle के साथ उसको कैसे एडजस्ट करना है. तो ER ending में ER को ड्रॉप किया और क्या एंडिंग्स लगाई हमने? हमने एंडिंग्स लगाई है E, ES, EONS, EZ और ENT. उदाहरण के लिए je chante, tu chantes, il chante, elle chante, on chante, nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. अच्छी बात है कि शुरुआत के 3 और आखिरी सेम साउंड करता है, और नू में ओ की ध्वनि आती है और वू में ए की ध्वनि आती है एंड में, जो हर जगह सेम रहती है पूरी फ्रेंच लैंग्वेज के सभी वर्ब्स के अंदर प्रेजेंट टेंस में. आगे बढ़ते हैं. यदि हम IR एंडिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर हम आर को ड्रॉप करते हैं और लगाते हैं हम SST, SSONS, SSEZ और SSENT, और उसकी ध्वनि हो जाती है फिनीर के केस में je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez और अंत में il, elle finissent. और अगर आखिरी हम क्रिया देखेंगे वो होता है टू सेल विच इज वॉन्थ, जो RE एंडिंग है. RE एंडिंग का एक स्ट्रक्चर चलता है, वो है कि आप RE को ड्रॉप करिए और आपके पास जो बच जाता है उसके अंदर आप S कुछ भी नहीं, ONS, EZ और ENT लगाएंगे तो आपका कॉन्जुगेशन हो जाएगा. उदाहरण है je vends, tu vends, il vend, elle vend, on vend, nous vendons, vous vendez, il, elle vendent, il, elle vendent. Ça va? Oui, très bien. चलिए इसको धीरे धीरे करिएगा, एक साथ आपको नहीं रटना, नहीं है समझ, ऐसा नहीं करना कि एक साथ सारे वर्ब्स आने चाहिए. धीरे धीरे वर्ब्स को जैसे आप मिलेंगे आपके ब्रेन को प्रोसेस कर लेना चाहिए. अच्छा ये वो वाला वर्ब है, ये ऐसे हुआ है. बट एक छोटा सा मैं स्टार लगाता हूँ. कंडीशन अप्लाई होती है ना हर जगह हमारे डॉक्यूमेंट्स में, वैसे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई क्या है? कंडीशन अप्लाई ये है कि ER एंडिंग वर्ब्स तो हमारे बड़े अच्छे और सरल और अच्छे भाव के वर्ब्स हैं. तो उसमें yeah, I'll request Tarun to be on mute for a while, and then whenever you have to say something, you could be on mute. Right. So, thank you.
सो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारा ई आर एंडिंग होगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ई आर एंडिंग वर्ब्स ऐसे ही चलते हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन आई आर एंडिंग और आर ई एंडिंग में चेंजेस मिलेंगे आपको। तो आप ये मत कहिएगा सर पर हमने तो आई आर और ई आर ई सीखा था आपसे, आई आर और आर ई तो वो एक साथ एक पैटर्न में चलता है, लार्जली ऐसा ही चलेगा। पर कुछ लीक से हटके कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, वो हम रास्ते में जब भी उनसे मिलेंगे तो हम उनको कॉन्जुगेशन सीखेंगे उनका अलग से और उनको याद करते चलेंगे, राइट? दैट्स गोइंग टू बी आवर प्रैक्टिस। यहां तक बताइए, इज दैट ओके? सबा, वैभव, तरुण? We, you can just say, put a thumbs up, or you can unmute and say, we, Saba. Saba? Any? Saba? Tarun? Saba? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपका छोटा सा इंटरव्यू लूंगा, आप तो अब आपसे सवाल जवाब की एक हम पूरी प्रक्रिया चालू करते हैं। ओके, सो वी फॉर यू Weber first. Yeah, Weber, bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. So I responded to him saying, je vais bien, merci. Okay. Yeah, Tarun, you'll be requested to be on mute for a while. I think there's some background score, but I understand we all are at our families and home. So on and off, whenever you can be on mute and unmute, it'll be helpful for us. Je vais bien. Merci. Right? Je vais bien, merci. Okay. Et pour toi, Weber, comment, I'm using your name still, I'm asking, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Voilà, comment tu t'appelles? Je m'appelle, and Weber. And the same question, how do I ask this question, Weber, formally? Comment vous vous appelez? Right? ये इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं कि हमें बहुत कंठस्थ होनी चाहिए, वी शुड हैव मेमोराइज्ड देम वेल, कि मुंह से निकले तो सही निकले। हम किसी श्रीमान से पूछें, किसी मोहतरमा से पूछें तो वो फॉर्मल वे में इतना याद हो अच्छे से, मैडम comment vous vous appelez, अंत में ज़ापले की ध्वनि आए। ऐसा नहीं हो कि हम मैडम comment vous vous appelle पे नहीं रुकना हमें, otherwise that will give a wrong impression that we are not sure of the question at all. So madame, which is madam, it can be M-A-D-A-M-E, or monsieur, M-O-N-S-I-E-U-R. So this is madame, madam, and monsieur is sir. Madame, monsieur, comment vous vous appelez? आपको याद है वैभव, vous के साथ हमेशा EZ पाया जाएगा. That shows कि ये fix है. इसमें कभी vous के बिना EZ नहीं होगा. That means it goes hand in hand. So madame, comment vous vous appelez? And then lady says, je m'appelle Marie, je m'appelle Sophie, je m'appelle Sylvie, whatever her name is. Okay. Pour toi, Vaibhav, quelle est ta profession? Je suis an engineer. Je suis ingénieur. Ok. Ingénieur. तो आप इंजीनियर हैं तो आप बोलिए ingénieur, ingénieur. Perfect. और आपने यहाँ से उठाया je suis, I am. Perfect. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. और आप अपनी बात को और बताने के लिए je travaille, I don't know if you work in a company, you can always say je travaille dans une entreprise. Je travaille dans une entreprise. Vaibhav. Je travaille dans une ये S और U जुड़ गया तो zune की ध्वनि है, dans une entreprise. 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 Très bien. Où means where. So मैंने आपसे प्रश्न पूछा où d'accord. Mais pas à Toulouse. À Toulouse, voilà. So and Toulouse, the name of this. Okay. You had given me the name of the company, I suppose. So the cities, the U was for the city. So Toulouse. Yeah, you are right. We can get confused. U मतलब company का नाम पूछ रहे हैं या शहर पूछ रहे हैं. So that is true. Yeah, it can be confusing. It can be confusing in any language. So U, then you gave me the name of the company. I wasn't too sure, so I said d'accord. Mais dans quelle ville? तो अगर मुझे पूछना किस शहर में, तो मैं पूछूंगा U की जगह in, dans, quel मतलब which, and ville, V-I-L-L-E, शहर में. So dans quelle ville, in which city, तब उस केस में आप बोलेंगे à Toulouse.
इन तुलूज या एट तुलूज जो भी है, लेकिन आ लगता है शहरों के पहले, आ तुलूज। très bien। ओके, यही क्वेश्चन अगर मुझे फॉर्मली पूछना होगा वैभव, तो मैं कैसे पूछूंगा? इंस्टेड ऑफ आस्किंग quelle est ta profession, what would I ask to a senior person? quelle est वो profession? सो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, इस ता को रिप्लेस करता हूँ रविंद्र, और मैं बना देता हूँ वोत्र, VOTRE, वोत्र। quelle est votre profession, आपका व्यवसाय क्या है? quelle est votre profession? सो मेरे पास ता और वोत्र दो में ऑप्शन है। ता होता है तुम्हारा और ये होता है आपका, राइट? तुम्हारा व्यवसाय क्या है और आपका व्यवसाय क्या है? सो इट्स गोइंग टू बी, वैभव रिपीट से, quelle est votre profession? votre profession? Perfect, quelle est votre profession, which means what is your profession? And then you said je suis ingénieur, and that's how you said about it in the formal way. And if I were to ask you this question, how do you read this one, Vaibhav? Et ta nationalité? Nationalité? Quelle est ta, सही पढ़ा आपने, उसको तोड़ के पढ़िए, nationalité। Nationalité? हाँ, श की ध्वनि को थोड़ा सा सॉफ्ट कीजिए, nationalité। Quelle est ta nationalité? Bravo, quelle est ta nationalité, which means what's your nationality? And what answer do we expect? Je suis indien. je suis indien। je suis, आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहें तो je suis indien बोल सकते हैं, अन्यथा je suis indien भी बोल सकते हैं, s को i से जोड़ सकते हैं और z की ध्वनि इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, which is optional। तो आप कह सकते हैं je suis indien, अन्यथा je suis indien, दोनों ठीक है, je suis indien। ओके, और अगर यही प्रश्न आपको फॉर्मली पूछना होता वैभव, तो आप कैसे पूछते किसी श्रीमान से, आपकी क्या नागरिकता है, व्हाट इज योर नेशनलिटी, आपकी क्या राष्ट्रीयता है? सो Quelle est votre nationalité। nationalité? परफेक्ट। और अंत में अगर आपको किसी से पूछना है वैभव, तुम कहाँ रहते हो? Tu habites où? ऊ सही पढ़ा आपने, बाकी इन दोनों शब्दों में समस्या है। एक तो इसको सही पढ़िए, Tu habites हाँ où? हाँ, ये ऊ ठीक पढ़ा पहले भी, अभी भी ठीक पढ़ा, इसको सही कर लिया अभी आपने, आपने इसको त्यू पढ़ा, विच इज गुड। पहले आपने तू बोला, फिर इसको त्यू कर दिया। अब इसको पढ़िए, अब याद कीजिए, ई एस को हम क्या पढ़ते हैं? क्या हम इसको अबीते पढ़ते हैं या अबीत पढ़ते हैं? Yes. Sorry. Yes. You got it? इसको Tu अबीत, habites où? voilà। tu habites où? tu habites où? where do you live? तो आंसर हो जाएगा, J'habite à Toulouse. voilà, j'habite à Toulouse, j'habite à Toulouse। Perfect। And the same question, if you were to say in a formal way, how do you ask that one? Vous habitez où? Very good। vous habitez où? आप रहते हैं कहाँ? Which is of course not correct in Hindi, but French में vous habitez où? Where do you live? And the answer is going to be j'habite à Toulouse। Ça va, Vaibhav? Tarun? Oui, Ravindra, c'est bon? Let me quickly ask some questions to Tarun now. Tarun, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Très Ça bien. va très bien. Not très bien. Très bien. Très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. If you have to say, it's going very good. Yeah. You can put your camera on so that I can quickly check your pronunciation with the way you make your sounds. Then I know your name, but still I'll ask you the same. Tarun, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tarun. D'accord. Et tu habites où? Tu habites où? Tu habites où? J'habite à Toulouse. Voilà, À j'habite à Toulouse. J'habite à Toulouse. J'habite à, and then Toulouse. Tu and lu and Toulouse. Perfect. J'habite à Toulouse. यहाँ पे बिंदी है, इसलिए वो j'habite की ध्वनि आएगी, j'habite à Toulouse. Perfect. And Tarun, quelle est ta nationalité? Je suis indien. Je suis indien. 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 Un, बोलिए un, un. Un. Perfect. Un. Dien, dien. Indien. Perfect. Indien. Je suis indien. Indien. Perfect. And एक last question है आपसे, Tarun, quelle est ta profession? I think you told me the other day. Quelle est ta profession? Je suis
architect, ओके, आर्किटेक्ट में इसमें क की ध्वनि नहीं आएगी, आर्किटेक्ट आएगा, आर्किटेक्ट, architect, voilà, architect, वही, and then je, if je जी, travaille, je हम्म, travaille, je travaille, je travaille, je travaille, travaille, je travaille and dans, dans une, dans une enterprise ओके, अब à इसको Toulouse. आ toulouse, ठीक है, Enterprise company à Toulouse. ओके, I'll help you with that, एक बार रिपीट कीजिए, तरुण बोलिए, je travaille Je travaille dans une dans une entreprise, entreprise bravo, à Toulouse, à Toulouse. and the whole thing goes this way, repeat after me the whole thing once, Tarun, it should be, je travaille dans une entreprise à Toulouse. Je travaille dans une Hmm? entreprise Anthony, à Toulouse. entre पढ़ना है, entreprise, Entreprise à Toulouse. perfect. अंग्रेजी में enterprise बोलते हैं, फ्रेंच में entreprise à Toulouse, perfect. चलिए, we'll just quickly check with Ravindra if she is able to respond to some of the questions. Oui, Ravindra, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Merci, Très bien. ça va bien, très bien. Okay, you're giving all the answers, so that's okay. You have to revise them. And then, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ravinder. Voilà, je m'appelle Ravinder. Et quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? If you can help us with this one. Je suis indienne. Je suis indienne. Je suis indienne. Je suis indienne. हाँ, Indienne. हाँ, un की ध्वनि देनी है, indienne. Indienne. हाँ, ये जो न हम, हाँ बोलिए, je suis indienne. Je suis indienne. वेरी गुड. अभी जो आप सुन रहे हैं ना indienne, ये हम बहुत ज्यादा करके बोल रहे हैं ताकि हम उसको बोलें और धीरे धीरे इसको हम सॉफ्ट कर देंगे, राइट? आई एम एग्जैजुरेटिंग इट फॉर यू पीपल सो दैट यू हेयर इट. सुनेंगे तभी तो उसको शेप में लाएंगे. सो indienne है, बिल्कुल ठीक है. और सॉफ्टली फिर आप बोलेंगे, जब आप सीख जाएंगे तो आप बोलेंगे je suis indienne. Je suis indienne. न हल्का सा सुनाई देगा. It will be very soft. It won't be this profound. Okay. And one last question to you, Ravinder. Tu habites où? Tu habites où? J'ai habité à Toulouse. तो आप बोलिए j'habite à Toulouse. J'habite à Toulouse. Voilà, j'habite à Toulouse. J'habite à Toulouse. हाँ, très bien. चलिए, अब आगे बढ़ते हैं. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ओके, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव एन आइडिया. सो एक वर्ब है regarder, which means to watch. ये regarder वर्ब से आया है. आई होप अब आपको समझ में आता होगा. रविंद्र एंड तरुण एंड वैभव की ट्यू के साथ हम es लगाते हैं, ट्यू के साथ es लगाते हैं, और ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सारी er एंडिंग है. मैंने बड़ी आसान क्रियाएं ली है. regarder, écouter, écouter मतलब टू लिसन, सुनना, सुनना, राइट? écouter. chanter आपको पता है टू सिंग, गाना. फिर आपको पता है manger होता है. एनी गेसेस व्हाट इज manger? हाँ. टू ईट. वेरी गुड. और travailler बताइए, एनीवन? To work. टू वर्क एंड नॉट टू ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल होता है. एनीवन हु नोज व्हाट इज टू ट्रैवल? यात्रा करना क्या होता है? तरुण, वैभव? सॉरी? voyage. या voyage. Tu voyages tu voyages en France? या do you travel in France? फ्रांस में घूमते हो? तो इसकी क्रिया हो जाएगी voyager, which I'll write over here, voyager. ठीक है, टू ट्रैवल. तो पहले काम करेंगे, फिर आराम करेंगे घूमने फिरने का. चलिए, ओके. अब देख लीजिए, अगर आपको दिमाग में समझ में बैठता है कि regarder, écouter, chanter, manger, travailler और voyager की जो क्रियाएं हैं उसको कॉन्जुगेट करने पे मुझे es मिला है और मैंने कुछ प्रश्न बनाए. लेट्स सी with first I'll ask Vaibhav, then Tarun, and then Ravindra. I'll ask you. Let's see if you can respond to these questions. Voilà, toi, Vaibhav, tu regardes la télé? Tu regardes la télé? Oui, je regardais la télé en gros. Je के साथ आपने क्या बोला? Regarde. हाँ, अभी सही कर लिया आपने.
Je regarde la télé un peu. मैं थोड़ा बहुत टीवी देखता हूँ. ठीक है. यहाँ से भी आंसर्स आप पिकअप कर सकते हैं रविंद्र if you wish to, or you can have your own answer. The next one for you, again for you, Vaibhav. Tu écoutes la musique? Tu écoutes la musique? No, je ne écoute ठीक है. pas musique. ओके, je n'écoute pas. ला लगाना मत भूलिए. ला म्यूजिक. अगर प्रश्न में ला है तो हमारे उत्तर में भी ला आएगा. तो मैं संगीत नहीं सुनता हूँ. एक चीज ध्यान रखिएगा रविंद्र, आपने देखा नहीं है अभी तक इस पॉइंट को. जब कभी भी हम नेगेटिव बनाएंगे, नहीं, आई डोंट वॉच टेलीविजन, आई डोंट सिंग, आई डोंट ईट, आई डोंट डांस, तो डोंट लगता है अंग्रेजी में तो नॉट हो जाता है. तो फ्रेंच भाषा में न और पा लगाकर, मुख्य क्रिया के आजू बाजू में न पा लगाकर हम हमारा नेगेटिव बनाते हैं. बहुत सिंपल है. तो आप न पहले लगा दीजिए और पा बाद में लगा दीजिए. इट बिकम्स नॉट और डोंट. सो I do not listen to music. अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, आप ध्यान दीजिएगा वैभव. सिंस इट स्टार्ट्स विद वोवेल, तो हमें इसका ई ड्रॉप करना पड़ेगा. तो आपका अंतिम आंसर हो जाएगा n apostrophe, right? N apostrophe is going to be your final answer. So I'll write it down. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. मैं नहीं सुनता हूँ. Je n'écoute pas la musique. Right? Et toi, वैभव, tu chantes en hindi? Tu chantes en hindi? No, no, je ne chante pas en hindi. नो, मैं हिंदी में नहीं गाता हूँ. je ne chante pas en hindi. En hindi. Ok. Et Vaibhav, tu manges au restaurant? Tu manges au restaurant? Oui. Oui, je mange à un restaurant. Au restaurant. Right? Je mange au restaurant. Perfect. Okay, next one for you. Again, for you, Vaibhav. Tu travailles à Toulouse? Oui, je travaille à Toulouse. Voilà, je travaille à Toulouse. मैं Toulouse में काम करता हूँ. Perfect. And the last one for you. Voilà. Tu voyages en France, Vaibhav? Tu voyages en France? Oui, je voyage en France. Oui, je voyage en France. मैं फ्रांस में यात्रा करता हूँ. Perfect. Ça va, Tarun? Oui, you want to say something, Vaibhav? Ça va? Yes, sir. जैसे I eat at restaurant and I work at Toulouse. तो फिर हाँ. ये फर्क कैसे हुआ? I eat अच्छा, वो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे AU क्यों आया और यहाँ पे A क्यों आया? तो शहर के पहले फिक्स है. शहर के पहले आ ही लगता है. शहर के पहले it's always a. There is no other preposition that you can use apart from a. Whereas restaurant जो है, restaurant जो है वो हमारी एक common place है, right? It's a restaurant. So उसके पहले हम a जो लगा रहे हैं, AU इसके अंदर दो शब्द छुपे हुए हैं. इसमें छुपा हुआ है a plus LE. वो मिलके बनाता है AU. So at the, क्योंकि आप अंग्रेजी में ये नहीं बोल सकते हैं कि आई वर्क एट द टूलूज. वो तो कोई बैठा नहीं, द नहीं लगता है टूलूज के पहले. लेकिन रेस्टोरेंट के पहले द लगता है. आई ईट एट द रेस्टोरेंट. तो जो द लगता है वैभव, वो LE होता है. और वो LE जब आ के साथ जुड़ता है तो वो AU बना देता है. ये हम आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स. तो इसे आपको हमेशा फिक्स रखना है कि आपको हमेशा बोलना है ओ रेस्टोरेंट, एट द रेस्टोरेंट. आई ईट एट द रेस्टोरेंट. ओ फिक्स है वो, राइट? So I is at and also Two. जैसे A plus बोलते तो CU भी है. हाँ, वो उसके उस सेंस में होता है until वाला सेंस में. आप plus tard, बाद में मिलेंगे. तो वो वहां पे at और to के सेंस में नहीं है. अगर आप उसी में जाना चाहते तो to the next time, अगले समय तक मिलते हैं. You know, to the next time. उस सेंस में है वो. जैसे हम बोलते हैं आलंदी बोलते हैं हम लोग फ्राइडे को निकलते हैं तो बोलते हैं हाँ, आलंदी मतलब सोमवार को मिलते हैं. मतलब अब सोमवार को मिलते हैं. टू मतलब अब हमारा देखने का जो काम होगा वो अब एट मंडे होगा, टू मंडे होगा, उस सेंस में. अरे तो आलंदी, दैट वे. ओके, चलिए. क्विकली वील आस्क द सेम क्वेश्चंस टू तरुण. तरुण, क्विकली यू विल हैव टू रिस्पोंड टू अस बाय रिस्पोंडिंग टू दीस क्वेश्चंस. Tu regardes la télé, Tarun? Tu regardes la télé? Oui, oui, je regardais
la télé. हाँ, अब इसको और अच्छे से बोलिए, je regarde नहीं, je regarde la télé. Je regarde la télé. हाँ, je regarde la télé, right? Regarde, de पे रुकना है, दे नहीं बोलना है इसको, ई को ए नहीं पढ़ते, right? Okay, next one for you again, Tarun. Tu écoutes la musique? Je écoute la musique. Okay, very good. तो आप yes में उत्तर दे रहे हैं, oui, j'écoute la musique. I listen to the music. मैं संगीत सुनता हूँ. J'écoute la musique. Perfect. Okay, next one for you again. Tarun, tu chantes en hindi? Non, je ne Hmm? chante Hmm. pas hindi. En hindi. En मतलब in, en hindi. Okay, next. Tarun, tu manges au restaurant? Oui, je mange Au au restaurant. restaurant. Rang पे रुक जाएंगे हम, ठीक है? Perfect. Next, Tarun, tu travailles à Toulouse? Oui, je travaille Hmm? à Toulouse. Perfect. Oui, je travaille à Toulouse. मैं toulouse में काम करता हूँ. Travaille. Perfect. और अंत में, Tarun, tu voyages en France? Oui, je voyage en France. Perfect. Oui, je voyage en France. मैं France में यात्रा करता हूँ. Perfect. Ok, très bien. Ravindra, ça va? Tu peux dire? Can you say it? Can we I try? can try. We can try. चलिए. Yeah. So, the first question is for you. Tu regardes la télé? Oui, je regarde la télé. Perfect. As it is question में से उठा लीजिए ताकि pronunciation आपका clean हो जाए. आगे. Tu écoutes la musique? Oui, j'écoute la musique. और अच्छे से बोलिए j'écoute. Je- oui, j'écoute la musique. हाँ, और अच्छे से एक बार आखिरी बार रविंद्र, j'écoute. J'écoute, हाँ, जे नहीं, ला- j'écoute. j'écoute हाँ, la very good. musique. j'écoute. हाँ, आई थिंक आप बोल सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है. सो आपको बस सही ध्वनि पकड़नी है. j'écoute la musique. Perfect. J'écoute. Okay, next one. Ravindra, tu chantes en hindi? Oui, je chante en hindi. En hindi. Je chante en hindi. En hindi. चलिए. Oui, je chante en hindi. ओके, तो हिंदी में तो नहीं, फ्रेंच में कोई दिन गवाएंगे आपसे एक गाना. d'accord? ओके, चलिए. D'accord. किसी ने तो हाँ बोला. Alright, so next. Tu manges au restaurant? Oui, je mange au restaurant. Perfect. Restaurant. Restaurant. Yes, so it's Rest. not it's burger sound. नहीं नहीं, ग नहीं है, ग थोड़ा सा ग यहाँ से आता है, ग का साउंड है, र. तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको ग ना बनाएं, क्योंकि ग तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. आप इसको र रख सकते हैं. रेस्टोरेंट रखिए, और धीरे धीरे समय लेते हुए ग की ध्वनि, ग. ये र और ख के बीच में कहीं होती है इसकी ध्वनि, बट डोंट ओवरडू इट, अदरवाइज यू विल हर्ट योरसेल्फ. कीप इट सॉफ्ट फॉर द मोमेंट. र से काम चलाइए. रेस्टोरेंट. ओके, परफेक्ट. नेक्स्ट. Tu travailles à Toulouse? Non, je travaille Toulouse. Non, je ne Travaille. pas Travaille. Toulouse. Je ne travaille pas. Non, j'ai sorry. No, I'll help you with that. Non, je ne Je- travaille हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं je no no, je ne travaille pas à Toulouse. Yes. Je ne travaille pas à Toulouse. Non, je ne travaille नहीं, travaille नहीं, रविंद्र ध्यान दीजिए. travaille नहीं, travaille. travaille. हाँ Travaille. हाँ. हिंदी में लिखना चाहें तो आजू बाजू का साउंड होगा, थ से थकान, फिर नीचे travaille. travaille. I don't know आपको दिख रहा है तो यहाँ पे स्क्रीन पे travaille. Right? travaille à Toulouse. Non, non, je ne travaille
पा à Toulouse. परफेक्ट, बस इसको ने नहीं पढ़ना, आपको न पढ़ना है, न न Non, न। non. और अंत में एक और प्रश्न आपसे, tu voyages en France? Oui, je voyage en En France. en को en पढ़िए, En en France, France. परफेक्ट। और इसको फिर से पढ़िए एक बार, क्योंकि कई बार आप गड़बड़ कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन का सही कीजिए, जे का Oui, oui, je voyage voyage en en France, France. परफेक्ट। je, राइट, तो जे नहीं पढ़ना, je पढ़ना है, je। Je. परफेक्ट, चलिए, ओ ग्रेट, वंडरफुल। आई थिंक बहुत सारे आप लोगों को क्लैरिटी हो गई है। यही प्रश्न यदि हम वैभव किसी सीनियर से पूछते हैं तो आप सब ध्यान रखिएगा, इनका फॉर्मेशन बदल जाएगा। त्यू की जगह हम काम में लेंगे वो, और हमें लेना पड़ेगा इसमें एस की जगह जेड। Z. याद है आपको? तो एक बार पढ़ दीजिए फटाफट से आप सारे प्रश्न आपके हिसाब से, किसी से पूछना वैभव किसी सीनियर से, तो त्यू रगात की जगह Vous regardez la télé? वेरी गुड, vous regardez la télé, vous regardez la télé, परफेक्ट। दो आप ट्राई कीजिए, दो वील आस्क तरुण एंड दो हम पूछेंगे रविंद्र से। चलिए, और एक और पूछिए आप, नेक्स्ट वाला भी Vous वैभव। écoutez la musique? वेरी गुड, vous écoutez, आप संगीत सुनते हैं, vous écoutez la musique, परफेक्ट। ओके तरुण, आप ट्राई कीजिए, आप गाते हैं क्या हिंदी में, ऐसे पूछना है आपको। Tu chanter वेरी गुड, vous chantez en हिंदी, हिंदी? परफेक्ट, वेरी गुड, vous chantez en हिंदी, आप हिंदी में गाते हैं क्या, परफेक्ट। और एक और प्रश्न पूछिए तरुण, आप खाते हैं रेस्टोरेंट में। Tu manger au restaurant? हाँ, vous mangez au restaurant, Restaurant? restaurant, 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 ठीक है। और अंत में दो प्रश्न आप ट्राई कीजिए रविंद्र, त्यू travail की जगह वो करके बोलना है, त्यू voyage की जगह वो करके बोलना है। Vous travaillez à Toulouse? तो आपको लगता नहीं है कि हमको वो travailler बोलना चाहिए, क्योंकि एक ही ध्वनि आनी चाहिए। Travailler. हाँ, वो travailler à Vous Toulouse, travaillez à Toulouse, वेरी गुड। और Vous voyagez, वेरी गुड, voyagez voyager en France, परफेक्ट, voyagez en France. परफेक्ट। एक बार आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि वो में ए की ध्वनि आती है तो हर जगह ए आएगा, राइट। vous chantez, vous mangez, vous travaillez, vous parlez, vous regardez, और इस सब के साथ हमें यूज करना है द ए साउंड, परफेक्ट। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ça va? Vous êtes fatigué? Ça va? No, ça va, Vaibhav, Tarun? No? Okay, great. Because you know, there's a lot of repetition happening, and I'm sure that it might be strengthening your understanding, so it's good. आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम एक टेक्स्ट आपके लिए लेके आए हैं, जो हम प्रयास करते हैं। अभी हमारे पास कितना समय और है? Because we finish at 3, so we still have 26 minutes. Don't worry. इसको पूरा पढ़ेंगे। आज आप फ्रेंच में पढ़ने लग जाएंगे, so that will be a great pleasure for you as well. And चलिए, आराम आराम से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, टेक्स्ट को देख के धीरे धीरे पढ़ना है, दिमाग लगाना है, और आगे बढ़ते हैं। Did we have that class, Vaibhav, wherein we learned the combinations of phonetics? Ua, u, I think we did. याद है आपको? हमारी शुरुआत में एक क्लास हुई थी। Maybe you were there, or I don't remember. We'll redo it if at all. If it is not done, we'll redo it. Don't worry. But थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ। मैं खुद ही पढ़ता हूँ आपके साथ, ताकि आपको थोड़ा सा कंट्रोल मिले पढ़ने का। ओके, रिपीट कीजिए, बोलिए Marie. Marie. Yeah, everyone, repeat and unmute yourself and say Marie. 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 Habite. 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 H को पढ़ते नहीं, habite. Dans un, बोलिए dans un. Dans un. Yeah, Dans un. dans un. ये साथ में जाता है, dans un। आपको याद है, आपने बोला था तरुण एंड वैभव, dans une, एक कंपनी में काम करते हैं, dans une। तो कभी आप उसको dans une नहीं पढ़ेंगे, dans une पढ़ेंगे। तो आपकी आदत होनी चाहिए लिएजों करने की फ्रेंच में। फ्रेंच लोग बोलते तो लिएजों के साथ बोलते, तो आपको पता चलेगा ये ज़्यून कहाँ से आ गया, ये dans une से आया, ये dans un कहाँ से आ गया, dans un यहाँ से आया, dans un। चलिए आगे पढ़िए, साथ में बोलिए petit, Petit. petit, petit। आगे पढ़िए, बोलिए village, Village. village। पढ़ते रहिए, दिमाग में पढ़िए या अनम्यूट करके पढ़िए, बोलिए आला, Allah. आला, एवरीवन, आला। Compagnie. compagne, compagne,
पढ़िए। कॉम्पान्य, हाँ, जीएन की ध्वनि न्य, जीएन पढ़ते हैं न्य, न्य कॉम्पान्य, राइट। और जो क्वेश्चन, परफेक्ट, जो क्वेश्चन हमसे वैभव ने पूछा था कि वहां पे एयू क्यों था, क्योंकि उसपे आ और ल छुपा हुआ था। यहाँ आला क्यों है, क्योंकि कॉम्पान्य जो है वो फेमिनिन होता है कंट्री साइड, इससे हम उसमें आला लगाते हैं। तो ये आला, एयू, ये हम आगे सीखेंगे फॉर्मली भी, लेकिन टेक्स्ट में जहां जहां हमें मिलेगा हम इसको वहीं पे भी समझाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रिपीट कीजिए, बोलिए शाक माता। शाक माता, या एवरीवन, वैभव, शाक माता, या इज दैट ओके तरुण? शाक माता दिख रहा है आपको? शाक माता तरुण, राइट। अब देखिए MATIN को अगर हम नहीं पता होता तो हम मार्टिन पढ़ते, कुछ पढ़ते, आप याद कीजिए इंडियन कैसे पढ़ा था हमने, आंजिया। तो IN की ध्वनि क्या होती है वैभव? आ, वेरी गुड। तो MA की माँ और TIN की ता, माता, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़िएगा, कुछ रिलेट कीजिएगा। मैं पूरे आपको वो स्ट्रक्चरिंग बताऊंगा कि IN को ये पढ़ते हैं, OU को ये पढ़ते हैं, CH को पढ़ते हैं, वो बताऊंगा। बट उसके बावजूद भी पढ़ते समय बहुत अलर्ट होके पढ़ना है, ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन सुधरे, हमारा स्पोकन पार्ट सुधरे, और हम जब किसी को सुने तो उसने कहा ना माता, तो हमारे दिमाग में स्पेलिंग आ जाए, अच्छा MATIN बोल रहा है ये, और कुछ नहीं बोल रहा। तो किसी का नाम मार्टिन होता है, मार्टिन होता है, बता सकते हैं, कोई ट्राई कर सकता है? मार्टिन नाम फ्रेंच में कैसे पढ़ा जाएगा? या मख्ता, वेरी गुड, मख्ता, मख्ता, वेरी गुड, मख्ता, मख्ता, राइट। अब देखिए मार्टिन है अंग्रेजी का, सभी तरुण, Saint Martha. नहीं दिस वन, No, I'm just saying it's a place introduced. सा मख्ता, हाँ एग्जैक्टली, सा मख्ता। और अच्छा, जो सेंट है, सेंट होता है उसको पढ़ते हैं सा, हाँ सा मख्ता। अब देखिए आपने, हाँ, सेंट जो अंग्रेजी का सेंट है वो गया सा, सा माख्ता, वेरी गुड, सा माख्ता। तो आप जब भी कभी जगहों के नाम देखें तो आप दिमाग लगाइए कि अच्छा अभी तुलूज है मान लीजिए, तुलूज, तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है एवरीवन कि OU की ध्वनि होती है ऊ, ऊन वाला ऊ, तू, लू। और S जब कभी भी दो वॉवल्स के बीच में आता है तो स की ध्वनि नहीं देता, ज की ध्वनि देता है, तो क्या हो जाएगा? तुलूज, राइट। तो ना केवल हमें हमारे शहर का नाम सही लेना है, बल्कि सभी फ्रेंच शहरों के नाम सही लेने हैं। सो सैमाख्ता, जो इन्होंने सही बताया तरुण ने, सैमाख्ता, दैट्स हाउ यू हैव टू डू, राइट। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक ही पैरा पढ़ेंगे, ज्यादा परेशान न होंगे, न करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये तो आप जानते हैं, विल आस्क रविंद्र दिस वर्ड, लेट्स सी रविंद्र, इफ यू नो ELLE, एल, एल, ये तो हम सब जान गए। OU को अगर ऊ पढ़ते हैं और VRE को व्र, तो क्या होगा इसका साउंड? उग्र, उव्र, उव्र, एल उव्र। LES को बोलिए साथ में, बोलिए ले, ले, ले। ये इट्स नो मोर लेस, लेज कुछ नहीं है, ये लेस या लेज कुछ नहीं, ये ले। ओके, या One question. या Saint, Saint, या Sa, सेंट, Sa, या सेंट को पढ़ते हैं सा, सा, Sa, सा, Sa. या व्हाई? बिकॉज AIN, बताइए बताइए, टेल मी। But IN का जो sound है, हाँ, वो तो आ का होता है ना, आ. तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चाहे IN हो तरुण या AIN हो, दोनों की ध्वनि एक सी होती है, आ, सा, माख्ता, आ सुनाई दे रहा है आपको? आ, वही आ है माख्ता में भी और सा में भी। तो AIN बोले कि IN बोले कि IM बोले कि AIM बोले, जब मैं इस क्लास में बताऊंगा ये सारे कॉम्बिनेशन, तब आपको पता चलेगा कि IN, IM, AIN और AIM, इन चारों की ध्वनि होती है आ, आ। तो सा माख्ता, गॉट इट? टी साइलेंट है इसमें। हाँ, इसमें टी साइलेंट है, टी तो साइलेंट है, क्योंकि लास्ट हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है वो हम 99% को पढ़ते नहीं है, सा, ठीक है। अगर इस टी के बाद वैभव ई आ जाता, अगर इस टी के बाद ई आ जाता मान लीजिए, तो सैंत पढ़ते तब हम उसको सैंत, तब तो पढ़ा जाता, अन्यथा नहीं, राइट। आई टेल यू व्हेन इट इज गोइंग टू बी राइट एंड व्हेन नॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। खिड़कियों को बोलते हैं फ्रेंच में, बोलिए फनेत्र, फनेत्र, ट्राई कीजिए, fenêtre, वही फनेत्र, वैभव फनेत्र, या आगे बोलिए पूर, POUR को बोलिए पूर,
हम्म, अच्छा ये कोई ट्राई कर सकता है? LAISS, यार पहले रूल सुन लीजिए। ER में क्रिया खत्म होती है तो उसको ए पढ़ते हैं, तो अर नहीं पढ़ना, ए पढ़ना है। डबल एस आता है तो बीच में स की ध्वनि आती है, ज की ध्वनि नहीं आती है। और LAI में AI है, वो वही AI है जो हमने आई हैव में सीखा था, ए की ध्वनि है। तो AI हो गई ए की ध्वनि, बीच में स की ध्वनि और अंत में ए की ध्वनि। तो कैसे पढ़ेंगे LAISSER को? Okay. Okay, so the right one was given by Weber. It is laissez, 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 right? क्योंकि ले, AI को ए पढ़ते हैं तो उसके पहले ल की ध्वनि आई, रविंद्र, तो ले, और डबल एस को स पढ़ा और ER को ए पढ़ा, तो लेसे। लेसे होता है टू लीव, छोड़ देना, लेसे, राइट? लेसे, पूर लेसे। EN को अगर ओ पढ़ते हैं, ओ, ओ, तो anyone could someone try this one? Entrée, very good, entrée, wonderful. अब देखिए आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है ना कि ई आर को तो ए पढ़ना है, अभी अंग्रेजी नहीं है, एंटरर नहीं है, एंटरर करके कुछ नहीं पढ़ना, entrée, entrée, very good, right? So that was just to give you a little idea that धीरे धीरे आप अलर्ट होके पढ़ेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा, आपकी फ्रेंच बोलने की जो टेक्निक है वो सुधरेगी, और आप सही सुनेंगे। अब आपके सामने कोई बोलेगा ना entrée, तो आपके दिमाग में ENTRER की इमेज बननी चाहिए। दैट्स हाउ इट शुड हैपन, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू एसोसिएट द साउंड एंड द इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखें जो बोलें, और जो बोला गया है उसको तो लिखें, और जो लिखा गया है उसको बोलें, बिकॉज दैट हैज टू गो हैंड इन हैंड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं काम करता हूँ आपके लिए पूरा टेक्स्ट बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ता हूँ, ताकि इस पूरे हफ्ते के दौरान आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, प्रयास करेंगे इस टेक्स्ट का उच्चारण करने का इस पूरे हफ्ते में, एंड देन व्हेन वी विल कैच अप ऑन द कमिंग वीकेंड आई विल ट्राई टू सेंड यू सम लिटिल होमवर्क एज वेल। होमवर्क क्या है? आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे आपके लिए टेक्स्ट है, नीचे एक और टेक्स्ट है, उसका भी आपको पढ़कर मीनिंग समझना है अपने गेस वर्क से, और एक में आपको एक वर्ड रेफरेंस डिक्शनरी होती है, वर्ड रेफरेंस डिक्शनरी सबसे बेस्ट डिक्शनरी है, इसको आप ऑनलाइन खोलिएगा, वर्ड रेफरेंस डालिएगा, उसमें आप शब्दों को डालेंगे फ्रेंच के, तो आपको इंग्लिश में मीनिंग पता चलेगा, तो उस पर ढूंढ के मीनिंग निकालिएगा। प्रोनाउंसिएशन अभी इतनी चिंता मत कीजिए, मीनिंग निकालिएगा। और साथ में इन दो प्रश्न यहाँ पे हैं, और दो प्रश्न कुछ प्रश्न इस वाले पेज पे, और आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं आपकी सहूलियत के लिए, उनको टैली कर लीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है वीकेंड के हिसाब से, ताकि पूरे वीक में आप काम कर पाएं। और खत्म करने से पहले मैं एक बार आराम से इसको पढ़ता हूँ आपके सामने, ताकि आपके पास एक इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो आप खुद वापस से जाके इसको सुनिएगा। सो हाउ इट गोज, आराम से सुनिए और देखिए, और मैं जहाँ जहाँ लिएजन होगा, लिंकिंग होगी, उसको बोलता हूँ ताकि आप उसको सुन पाएं अच्छे से। सो इट गोज लाइक दिस। ऑलराइट, सो दिस इज Marie habite dans un petit village à la campagne. Chaque matin, elle ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Ensuite, elle prépare son petit déjeuner et boit. ओआई को उआ पढ़ते हैं तो बुआ, टी को पढ़ा नहीं तो बुआ। un café, ये ई पे ऐसी मात्रा होती है तो एक ही ध्वनि आती है, काफे। en regardant, en को पढ़ते हैं en, तो en regardant le jardin, le jardin। in को क्या पढ़ा? un jardin, Martin, Saint Jardin। après garden, very good, garden, exactly, जो शब्द आपको आते हैं दैट्स ग्रेट। ई पे दो प्रकार के एक्सेंट पाए जाते हैं, एक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला। इसको हम राइजिंग बोलेंगे अंग्रेजी में ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसको फॉलिंग बोलेंगे ताकि आप समझ जाए। इसको फ्रेंच में बोलते हैं एग्यू, और इसको बोलते हैं ग्राव। ई पे ही ई पे जब पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं अक्सों, अक्सों मतलब एक्सेंट, ACCENT। अक्सों एग्यू चढ़ाई वाला, राइजिंग वाला, और अक्सों ग्राव गिरने वाला, फॉलिंग वाला। इनकी ध्वनि कैसी होती है सुन लीजिए। यदि इस प्रकार का ई मात्रा के साथ मिले तो उसको पढ़ना है ए, ए फॉर एप्पल वाला ए। बोल के बताइए सब लोग, ए पढ़िए, ए परफेक्ट, ए। और अगर इस प्रकार का एक्सेंट दिखे आपको वैभव गिरने वाला, तो पढ़ेंगे ए, बोलिए परफेक्ट, ए और ए। तो आपके पास दो शब्द हैं, एक है CAFE और एक है TRES। आप दोनों शब्द आपने देख रखे हैं, ये कैसे पढ़ेंगे वैभव? CAFE, वेरी गुड, काफे। आपने ये नहीं बोला काफे, आपने बोला काफे, ए, क्योंकि ई पे अक्सों एग्यू था। और अक्सों ग्राव जो आप बोलते हैं ना, वेरी गुड,
कैसे बोलते हैं तरुण? वेरी गुड. या तरुण, हाउ डू यू से वेरी गुड? सावा? नो, यू से सावा. So this. हाँ हाँ, उसको सही करिए. जो आप TRES को उसका उच्चारण होगा très bien, très bien, राइट? तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ई पे आक्सों गिर जाता है तो très bien हो जाता है, राइट? तो वो हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये जो शब्द है उसमें आक्सों ग्राव है, तो इसकी ध्वनि होगी après, après, après मतलब आफ्टर, उसके बाद. Après, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. Après avoir mangé, elle lave les assiettes et organise sa journée. Marie travaille dans une ferme, elle nourrit les animaux et nettoie les étables. Parfois, elle aide son voisin à planter des légumes dans le jardin. Elle aime beaucoup travailler dehors car elle adore la nature et le calme. L'après-midi, Marie retrouve ses amis au café du village. Ils discutent, rient et partagent. अब आप कहोगे सर ENT तो कहीं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने सीखा था कि ENT को हम क्रिया में नहीं पढ़ते हैं. तो अ की ध्वनि होती है तरुण, तो ils discutent, rient et partagent, इस पे रुक जाएंगे हम. They discuss, they laugh and they share. क्या शेयर करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं? Des histoires, कहानियां, des histoires. Après, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? Elle retourne chez elle pour arroser les fleurs et ranger la maison. और अंत में ये मारी की पूरी दिनचर्या देख रहे हो क्या क्या करती है. और अंत में le soir, शाम को, elle dîne tranquillement et regarde un film. Avant de dormir, elle lit souvent un livre pour se détendre. Finalement, अंत में, elle éteint la lumière et dort paisiblement. बताइए, यहाँ तक ठीक है? मामला कंट्रोल में है? तरुण, वैभव, Sava, Ravindra, is it okay? Yeah, kind of. Okay. So what I'm trying to say is that, yeah. Tell me, Tarun. Can you also, can you also tell the meaning? A meaning? So if you would have nothing to do on the week, during the week. You'll feel bored. You won't have anything to do. So आप कहोगे सब करवा दिया, अब हम क्या करें? हाँ? We catch some of the Of course you do, because अब आप देखिए ना, ये तो आपको आराम से पता चल गया होगा. Elle regarde un film. बहुत आसान है. बताइए, आप बताइए तरुण. Elle regarde un film. वो क्या करती है शाम को? She वाला she watches a movie. वो फिल्म देखती है. तो आपको उठाना है चीजों को. एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि वो एनिमल्स को कुछ नरिश करती है, उनको खाना देती है. सो थोड़ा गेस वर्क करिए. क्यों? क्योंकि मैं बता दूंगा डेफिनेटली, अंत में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप कहीं पे कोई फ्रेंच टेक्स्ट मिलेगा आपको, तो आप गेस वर्क विल हेल्प यू अ लॉट. तो ये होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा. और इसके साथ आपको एक और टेक्स्ट दिया है, थोड़ा सा इसके साथ भी आप प्रयास कीजिएगा कि इसको पढ़ पाएं, समझ पाएं. सिंपल वर्ड्स हैं, travailler है और manger है, ये सब आप शब्द अब तक chanter है, राइट? petit, small, village, ये सब है, habite है. तो इनको ट्राई कीजिएगा and give a little challenge to yourself so that you are able to do these two texts. इनको पढ़ेंगे आप अगली क्लास में मेरे सामने फ्रेंच में, इनका मीनिंग बताएंगे, और यदि समय मिलता है आपको तो इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको करके आप आंसर भी करेंगे. Ça va, c'est bon, Vaibhav, Tarun, Ravindra? Oui? Très bien. Est-ce que vous avez des questions, questions pour moi? Oui, questions? Non? Non, pas de questions? Oui, Tarun? No. Questions, questions? Questions, questions. Oui, questions? Non? Question. Questions. Oui, Ravindra, pas de questions? No questions? Tarun, no? Ça va? No. Okay, great. So you don't have any questions. So I wish you a great week, because weekend is almost over. So a great week ahead for all of you. And please try doing these questions, these texts. And if at all you have any questions during the week, drop a message to me, take a screenshot, record your voice, and tell me, is it to be said like this or this way, that way? You can stay connected to me 24/7. Whenever I have time, I'll respond to you. And you can always ask me questions, right? So that way we still stay connected during the week when we are just catching up on the weekends. Voila.
Très bien. Je vous souhaite, I wish you, since the whole day is left for you, I would wish you, what is the word that I say to have a great day? Tarun. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous souhaite, I wish you bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Thank Bonne you. journée. Thank you. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.